سب سے پہلے آپ کو بتائیں کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر عبدالمجید اچکزئی نے میڈیا نمائندوں سے بھی بدتمیزی کی۔ پیشی کی ویڈیو بنانے پر عبدالمجید اچکزئی برہم ہو گئے۔ صحافیوں سے کہا کیا پولیس نے پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں کے۔ کوئٹہ دھماکے کی ویڈیو تو نہیں ملی، اس واقعے کی مل گئی۔ گاڑی سے کچلنے کی ویڈیو دکھانے پر عبدالمجید اچکزئی برہم ہو گئے۔ عبدالمجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی لیکن ریمانڈ نہیں ہو سکا۔ 20 جون کو عبدالمجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر عبدالمجید اچکزئی نے میڈیا نمائندوں سے بدتمیزی کی۔ پیشی کی ویڈیو بنانے پر عبدالمجید اچکزئی برہم ہو گئے اور صحافیوں سے کہا کیا پولیس نے پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں کے۔ کوئٹہ دھماکے کی ویڈیو تو نہیں ملی، اس واقعے کی مل گئی۔ پہلے سے دعوت دی تھی، بے شرم لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دی تھی، بے شرم لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دی تھی، بے شرم فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ کون سی والی؟ یہ کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ ایک ٹریفک صفائی کا فوٹیج ملا؟ ہاں فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ کون سی والی؟ یہ کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ ایک ٹریفک صفائی کا فوٹیج ملا؟ ہاں کوئٹہ دھماکے کی ویڈیو تو نہیں ملی، اس واقعے کی مل گئی۔ گاڑی سے کچلنے کی ویڈیو دکھانے پر عبدالمجید اچکزئی برہم ہو گئے اور عبدالمجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی ریمانڈ نہ ہو سکا۔ 20 جون کو عبدالمجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور آج عدالت میں پیشی کے موقع پر عبدالمجید اچکزئی نے میڈیا نمائندوں سے بدتمیزی کی ہے اور پیشی کی ویڈیو بنانے پر وہ برہم ہو گئے اور صحافیوں سے یہ کہا کہ کیا پولیس نے پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں کے۔ کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کو ریمانڈ کے لیے دوبارہ عدالت پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات معلوم کریں گے جیو نیوز کے نمائندے سلمان اشرف سے۔ سلمان بتائیے گا عبدالمجید اچکزئی کو کس عدالت میں پیش کیا گیا؟ مقدمے میں ان پر کیا الزامات ہیں؟ جی عبدالمجید اچکزئی کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کا ریمانڈ لیا جانا تھا۔ تاہم جیسے ہی وہ پہنچے بختر بند گاڑی سے باہر نکل رہے تھے تو میڈیا نمائندے جو وہاں پہ کیمرے لے کے موجود تھے انہوں نے ان پر برہمی کا اظہار کیا، طیش میں آگے اور کہا کہ کیا پولیس نے آپ کو پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں کہ کل جو ہونے والا دھماکہ تھا اس کی فوٹیج آپ کو نہیں ملی لیکن جو واقعہ پیش آیا اس کی فوٹیج آپ نے حاصل کر لی۔ اس کے بعد جو پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے وہ ان کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ جب وہاں سے سائیڈ روم میں انہیں رکھا گیا اس دوران عدالت کی جانب سے انہیں ریمانڈ نہیں دیا گیا، جس کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے انہیں سول لائن تھانے منتقل کیا گیا جہاں سے آمدہ اطلاعات کے مطابق انہیں دوبارہ ریمانڈ کے لیے ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں دوبارہ پیش کیے جانے کا امکان ہے جہاں پر ان کا ریمانڈ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہماری جو پولیس حکام سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ انہیں باضابطہ سیکیورٹی حصار میں یہاں پہ منتقل کیا جائے گا۔ تاہم ریمانڈ کے لیے جو ہماری بات ہوئی تھی ایف آئی آر میں 780 درج ہے، قتل کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے اور باضابطہ طور پہ نامینیٹ کیا گیا ہے جو نامعلوم ڈرائیور وغیرہ کے خلاف تھے۔ اس کے ساتھ جو ایف آئی آر میں کٹنگ کر کے مزید شامل کیا گیا ہے وہ نامعلوم وغیرہ یا عبدالمجید اچکزئی کا نام رکھتے ہوئے یہ دیگر دفعات کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جی صحیح۔ سلمان اشرف یہ بھی بتائیے گا عبدالمجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی ریمانڈ تو نہ ہو سکا، ان پر الزام کیا لگایا گیا ہے؟ مقدمے میں کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ جی مقدمے کی دفعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں 427 337 جو دفعات تھی وہ نامعلوم ڈرائیور پر تھی، لیکن جیسے ہی گزشتہ رات ان کی گرفتاری عمل میں آئی، بلکہ اسے گزشتہ رات نہیں کہا جائے گا، آج صبح الصبح کے ٹائم 4 سے 5 بجے کے دوران ان کے گھر پر جو پولیس کا ریڈ ہوا اس میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی، تو اس کے بعد ان پر 780 انسداد دہشت گردی کی دفعہ اور قتل کی دفعات جو ہیں انہیں بھی ایڈ کیا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ جی اچھا سلمان اشرف یہ بھی بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ عبدالمجید اچکزئی کی گاڑی اس وقت ڈرائیور چلا رہے تھے جس سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کیا گیا تھا، آپ اس ڈرائیور کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے وہ کہاں پر ہے؟
जी, इस हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं और अदालत में उन्होंने अपने उस ड्राइवर का, जिसको उन्होंने जाहिर किया कि वो ड्राइवर गाड़ी उस टाइम ड्राइव कर रहा था, उसकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है वो भी उन्होंने हिफाजती बेल भी ले रखी थी, जिसे उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड में पेश किया। जबकि जब वो ख़ुद यहाँ पर आए तो उनका कहना था कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो बदस्तूर इस बात से इनकारी हैं कि वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए जो हैं उनकी जानिब से दावा किया गया कि वो ख़ुद गाड़ी चला रहे थे। ताहम इस जो इल्ज़ाम है इसका फ़ैसला अभी होना बाकी है कि आया वो ख़ुद ड्राइव कर रहे थे या उनका ड्राइवर था, लेकिन पुलिस ने तमाम तर जो कानूनी मुश्काफियाँ हैं उसे देखते हुए उनकी गिरफ्तारी जो है वो आज अल सुबह जो अमल में लाई गई है। ये बताइएगा, जो जाम बहक होने वाले पुलिस एहलकार थे उनके लवाहिकीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी, इस हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए से बातचीत हो रही थी, बलूचिस्तान की एक अपनी रिवायात है, यहाँ पे जिरगा सिस्टम के ज़रिए भी अगर कोई शख्स कोई गलती से उससे कोई चीज़ सरजद हो जाए तो वो उसमें मुतलका फ़ैमिली से या मुतलका शख्स से या उनसे रब्ता करके इन मामलात को डील किया जाता है, जिसे जिरगा सिस्टम या मेड कहा जाता है हमारी रिवायती ज़बानों में यहाँ पे। तो उस सिलसिले में जो अब्दुल मजीद अचकज़ई की जानिब से या उनके जो मुख्तलिफ लोग थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जो मज़कूरा फैमिली है सब इंस्पेक्टर हाजी की, उनसे रब्ता किया जा रहा है कि उनसे मेड के लिए बात की जा रही है। तो इस हवाले से जब उनसे रब्ता किया गया, लेकिन जब दूसरी जानिब उनका मौक़िफ़ लिया गया तो उनका कहना था कि इब्तदाई दिनों में तो कोई रब्ता नहीं हो सका, लेकिन बाद तकरीबन कोई 24 घंटे कबल उनसे रब्ता हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई मुनासिब वक्त देख कर उस जिरगे या मेड को आने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपने सोग में बैठे हुए हैं, फातिहा ले रहे हैं। इस मौके पर इनका वहाँ जाना या उनसे मिलना कुछ मुनासिब नहीं है। ये फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करते हैं, माहिर मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि क्या एमपीए को बगैर हथकड़ी पेश करना गैर कानूनी नहीं है? बगैर हथकड़ी तो जो है वो किसी को भी नहीं पेश किया जा सकता, ये गैर कानूनी अमल है। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा कि अब्दुल मजीद अचकज़ई के खिलाफ 780A और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए जब ये कोई भी, देखो बात सीधी है, कानून वाज़ेह है कि कोई भी ऑफेंस करे, वो एमपीए हो या आम शहरी हो, कोई भी हो, कानून का इतलाक हर शहरी पे होगा। ठीक है, ये भी बताइएगा कि क्या जज ऐसा कर सकता है कि उसके सामने मुलजिम को पेश किया जाए लेकिन वो रिमांड ना करे? देखो, रिमांड जो है विद इन 24 आवर्स जो है 167 दफा जो है सीआरपीसी यानी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिमांड के लिए पेश करना है। 24 घंटे का मकसद है कि 1 घंटा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। सही। ये भी कहिएगा कि जज ने आज रिमांड नहीं दिया, इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? यानी रिमांड नहीं दिया? नहीं, अगर नहीं दिया रिमांड तो उसने गैर कानूनी जो है ना एक कदम उठाया है, गलत किया है ये, क्योंकि आर्टिकल 10 जो है और सबसेक्शन आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी ये कहती है कि विद इन 24 आवर्स। तो मोहम्मद खान 24 घंटे के अंदर तो पेश कर दिया गया, फिर भी रिमांड क्यों नहीं हो सका? रिमांड अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये गलत किया है, मैजिस्ट्रेट ने गलत किया है। कानूनी माहिर मोहम्मद खान साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगला लीगल प्रोसेस क्या बनता है, प्रोसीजर क्या बनता है फिर? उसके लिए जो आईओ को रिवीजन देनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करनी चाहिए उस ऑर्डर के खिलाफ। एक बार फिर बताइएगा मोहम्मद खान साहब कि 24 घंटे में पेश होने का कहा गया था, पेश हो गए, अब रिमांड क्यों नहीं हो सका? कानूनी राय आप क्या देंगे? और एक बार फिर, क्या एमपीए को बगैर हथकड़ी पेश करना गैर कानूनी नहीं है? बात सीधी है कि जो हमारी दफा 167 फौजदारी है, ज़ाब्ता फौजदारी, वो क्लियर कहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जो करीब तरीन मैजिस्ट्रेट है, और मैजिस्ट्रेट इस लिए ड्यूटी बाउंड है कि मुलजिम जैसे ही उसके सामने पेश हो, उससे 2-3 सवालात करने के बाद और पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो रिमांड देने के लिए पाबंद है। और कानून ये कहता है कि कोई भी शहरी, वो अगर एमपीए है, एमएनए है या सेनेटर है या आम शहरी है, कोई भी जुर्म करता है तो कानून की नजर में तमाम बराबर हैं और पुलिस उसको हथकड़ी में कोर्ट में पेश करने के लिए पाबंद है। रिमांड ना हो सकने की क्या वजह हो सकती है मोहम्मद खान साहब?
रिमांड न देने की वजह यह है कि मेरी नजर में तो मैजिस्ट्रेट का ये अमल गैर कानूनी है। लेकिन इसकी वजह क्या थी? वजह तो अब वो मैजिस्ट्रेट ठीक है, कानूनी माहिर मोहम्मद खान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन हमें इससे आगाह किया। आपको बता रहे हैं कि कोयटा में सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से कुचलने के मुलजिम एमपी बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल मजीद अचकजई को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के मौके पर अब्दुल मजीद अचकजई ने मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी भी की। पेशी की वीडियो बनाने पर वो बरहम हुए और सहाफियों से कहा कि क्या पुलिस ने पहले से बुला रखा था, बेशरम कहीं के। कोयटा धमाके की वीडियो तो नहीं मिली, इस वाकई की मिल गई है। गाड़ी से कुचलने की वीडियो दिखाने पर अब्दुल मजीद अचकजई बरहम हो गए और अब्दुल मजीद अचकजई की अदालत में पेशी रिमांड ना हो सके। इस वक्त एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, जब अब्दुल मजीद अचकजई यहां पर पेश होने के लिए यहां पर आए तो मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने क्या कहा। तो पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी, बेशर्म मतलब। तो पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी, बेशर्म मतलब। तो पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी, बेशर्म मतलब। फुटेज आप लोगों को नहीं मिला? कौन सी वाली? ये कल जो कोयटा में वाकया हुआ, इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला? एक ट्रैफिक सिपाही का फुटेज मिला? हाँ, फुटेज आप लोगों को नहीं मिला? कौन सी वाली? ये कल जो कोयटा में वाकया हुआ, इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला? एक ट्रैफिक सिपाही का फुटेज मिला? हाँ, क्या पुलिस ने पहले से बुला रखा था, बेशरम कहीं के, ये कहा अब्दुल मजीद अचकजई ने जब वो अदालत में पेशी के मौके पर पहुंचे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, एक तो मुलजिम को बगैर हथकड़ी के पेश किया, क्या फिर उसकी मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी, क्या ये खुली धमकी नहीं? इस माहौल में काम करने वाले सहाफ़ी इस सूरत हाल से खुद को किस तरह गैर जानिबदार और महफूज रख सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ, वो जो लोग इनकी तस्वीरें बना रहे थे, जो वीडियो लेके गए थे, जो कैमरामैन थे, वो बेशर्म थे। वो पुलिस वाला भी बेशर्म था जो इनकी गाड़ी के सामने आ गया और वो कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा था, लेकिन चूंकि बादशाह सलामत की गाड़ी के सामने था इसलिए वो बेशर्म मारा गया। बाकी बेशर्म आज पहुंच गए, वो तस्वीर बना रहे थे, एक जाहिर है बादशाह सलामत की तस्वीर बना रहे थे, जिनको बिल्कुल बादशाह सलामत की तरह अदालत में पेश किया गया और बादशाह सलामत की तरह उनका रिमांड नहीं लिया गया। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि अब वो कस्टडी में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस उनको कस्टडी में रख नहीं सकती, क्योंकि अब उनका रिमांड अगर नहीं हुआ है और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में रखा तो फिर ये गैर कानूनी काम होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना था। इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। बाकी जो उन्होंने मीडिया के हवाले से कहा, हम मीडिया वाले इस किस्म के ताने सुनते रहे हैं, अटैक होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल जो वाकया हुआ उसकी फुटेज नहीं थी। पहले तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि कल जो वाकया हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। फिर उन्हें ये सोचना चाहिए था कि इससे पहले जो कोयटा में वाकया हुआ था उसकी कवरेज किसने की थी, कल के वाकये की कवरेज किसने की। दरअसल ये फर्क है एक बाअसर आदमी का अदालत में पेश होने का और एक ऐसे आदमी का, एक आम आदमी को जब अदालत में लाया जाता है तो उसका फर्क जो है वो बता रहे थे वो। तो उन्होंने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के सहाफियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए पूरी सहाफी बरादरी को, और कम से कम इन मौसूफ का तो मुकम्मल बॉयकॉट करना चाहिए। इन मौसूफ की हर किस्म की कवरेज का बॉयकॉट करना चाहिए जब तक ये माफ़ी ना मांगे। और असल चीज मीडिया वालों से माफ़ी मांगने या ना मांगने की है, लेकिन जो खानदान उजड़ गया है, उस पुलिस कांस्टेबल का जो खानदान उजड़ गया है, ईद से कबल उसके साथ जो वाकया हुआ है, उस वाकये की हम अंदाजा कर सकते हैं कि उसका मंतकी अंजाम क्या होगा इस मुकदमे का। आज जिस अंदाज में पेश किया गया, जिस अंदाज में रिमांड नहीं लिया गया, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कहना कि मेरा ख्याल है कि इस मुकदमा भी जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे वो, क्योंकि नामालूम अफराद पे मुकदमा है तो वो नामालूम ही रहेगा और ये मुकदमा नामालूम तरीके से ही खत्म किया जाएगा। बाकी मेरा ख्याल है जो मीडिया के साथ उन्होंने बिहेवियर किया, ये सहाफियों की उधर जो मौजूद थे, कैमरामैन की, उनका बड़ापन है कि उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उस पर एहतजाज नहीं किया ये। लेकिन पूरी सहाफी बरादरी को अपने बलूचिस्तान के उन साथियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए।
صحیح. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب عدالت میں پیشی کے موقع پر وہ یہاں پر میڈیا نمائندوں سے انہوں نے بدتمیزی بھی کی اور پیشی کی ویڈیو بنانے پر عبد المجید اچکزئی برہم ہو گئے اور صحافیوں سے کہا کہ کیا پولیس نے پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں گے. عبد المجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی لیکن ریمانڈ نہیں ہو سکا. 20 جون کو عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا. مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا. مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کر دیے گئے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا ہے اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش ہوئے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریمانڈ نہ ہو سکا. مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا. تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف سے. سلمان، بتائیے گا تفصیلات. مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا؟ جی، اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مجید اچکزئی کو دوبارہ ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں پہ عدالت نے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نارمل ہے، کنڈیشن آپ کی باڈی، پولیس کی جانب سے کوئی تشدد تو نہیں کیا گیا، جس پر تمام چیزیں انہوں نے جواب دیا کہ نارمل ہے، نہ کسی قسم کا کوئی تشدد ہوا ہے اور نہ ہی ان کی طبیعت خراب ہے، وہ بالکل اوکے ہیں. جس کے بعد یہاں سے دوبارہ انہیں پولیس وین میں منتقل کر دیا گیا ہے سول لائن تھانے میں. جی صحیح، عدالت منتقل کیا گیا ہے اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اس سے پہلے عدالت میں پیش ہوئی ریمانڈ نہ ہو سکا. 20 جون کو عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا. سلمان اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. آج عبد المجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی ہوئی لیکن ان کا ریمانڈ نہیں ہو سکا تھا. اب مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا ہے. مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے. عبد المجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی لیکن آج ان کا ریمانڈ نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا. مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کر دیے گئے. کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کیا گیا. عبد المجید اچکزئی کی عدالت میں پیشی کے باوجود ان کا ریمانڈ نہیں ہو سکا، جس کے بعد عبد المجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیے گئے. اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم پیش رفت، مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا ہے اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کیا گیا اور آج جب عدالت میں ان کی پیشی تھی تو ریمانڈ نہ ہو سکا، لیکن اب دوبارہ مجید اچکزئی کو عدالت منتقل کر دیا گیا ہے اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا عدالت میں پیشی کے موقع پر جب عبد المجید اچکزئی یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بدتمیزی بھی کی اور پیشی کی ویڈیو بنانے پر عبد المجید اچکزئی کافی برہم نظر آئے اور کہا کہ کوئٹہ دھماکے کی ویڈیو تو نہیں ملی، اس واقعے کی مل گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا پولیس نے پہلے سے بلا رکھا تھا؟ بے شرم کہیں کہ. اب یہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا ہے اور مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کر دیے گئے. 20 جون کو عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو مقدمہ تھا یہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو آج بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن اس پیشی کے باوجود ریمانڈ نہیں ہو سکا، جس کے بعد تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق مجید اچکزئی کو دوبارہ سے عدالت منتقل کیا گیا ہے. مجید اچکزئی جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. مجید اچکزئی کو دوبارہ عدالت منتقل کر دیا گیا. 20 جون کو عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے پولیس سب انسپیکٹر کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی. آج عبد المجید اچکزئی کی عدالت میں پیش ہوئی، ریمانڈ نہ ہو سکا. اب دوبارہ عدالت منتقل کیا گیا ہے مجید اچکزئی کو اور جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. کوئٹہ میں سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچلنے کے ملزم ایم پی اے بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس موقع پر ہم نے دیکھا مناظر بھی اپنے ناظرین کو دکھائے جب یہاں پر پہنچے ہیں عدالت میں پیشی کے موقع پر. انہوں نے
उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी भी की है और पेशी की वीडियो बनाने पर काफ़ी बरहम नजर आए और ये भी कहा सहाफियों को कि कोयटा धमाके की वीडियो तो नहीं मिली, इस वाक़े की मिल गई है। गाड़ी से कुचलने की वीडियो दिखाने पर अब्दुल मजीद अचकज़ई बरहम हो गए। अदालत में पेशी हुई, रिमांड ना हो सका। 20 जून को अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी से पुलिस सब इंस्पेक्टर को कुचलकर हलाक कर दिया गया था। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि मजीद अचकज़ई को दोबारा अदालत मुंतकिल कर दिया गया है और अब मजीद अचकज़ई जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश होंगे। 20 जून को अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी से पुलिस सब इंस्पेक्टर को कुचलकर हलाक कर दिया गया था। आज एमपीए बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकज़ई को अदालत में पेश किया जाना था। उन्हें बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उनकी पेशी तो हो गई लेकिन रिमांड नहीं हो सका। उसके बाद मजीद अचकज़ई को दोबारा से अदालत में पेश किया गया। मजीद अचकज़ई जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में दोबारा से पेश किए गए। अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि 5 रोज़ा रिमांड पर दे दिया गया है। मजीद अचकज़ई को दोबारा अदालत मुंतकिल किया गया है। वो पेश है वहां पर। सलमान अशरफ वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी सलमान, ताज़ा तरीन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, इस हवाले से जैसे ही मजीद अचकज़ई को अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश किया गया, इस दौरान अदालत ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ये पूछा कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर मजीद अचकज़ई ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। बादशाह उनसे सवाल किया गया कि पुलिस की जानिब से कोई तशद्दुद तो उन पर नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जिसके बाद उन्हें वहां से मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने जो अपने ऑर्डर्स किए हैं उसके मुताबिक 5 रोज़ा रिमांड पर उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। जी अच्छा सलमान अशरफ, ये भी बताइएगा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, अब अगला लीगल प्रोसेस क्या होगा, लीगल प्रोसीजर क्या होगा? जी, इस हवाले से वो बाकायदा तौर पे नॉमिनेटेड से FIR में, इसलिए उन्हें पेश किया गया। पेश करने के बाद जब अदालत के सामने वो पेश हुए, अदालत ने उन्हें 5 रोज़ा रिमांड ग्रांट कर दिया है। अब पुलिस के पास बाकायदा तौर पर कानूनी एक दायराकार आ गया है कि वो 5 रोज तक जो रुकने असम्बली है मजीद अचकज़ई उन्हें अपनी तहवील में रख सकती है। सलमान, ये बताइएगा ये जुडिशल रिमांड है या इन्हें पुलिस के हवाले किया गया है? जी, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस की जानिब से उनका रिमांड मांगा गया था, जिस पर अदालत ने जो है फैसला देते हुए 5 रोज़ा रिमांड पर उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया है। जी सही है सलमान अशरफ, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि अब्दुल मजीद अचकज़ई को 5 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब्दुल मजीद अचकज़ई को 5 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोयटा में सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से कुचलने के मुलजिम MPA बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकज़ई आज अदालत में पेश हुए। बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में उनको पेश किया गया, जिस पर जब वो पहुंचे तो उन्हें मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी भी की और बरहमी का भी इजहार किया। फिर रिमांड ना हो सका, उसके बाद दोबारा मजीद अचकज़ई को अदालत मुंतकिल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश हुए और अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि अब्दुल मजीद अचकज़ई को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 20 जून को अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी से पुलिस सब इंस्पेक्टर को कुचलकर हलाक कर दिया गया था। इस मौके पर मजिस्ट्रेट से उनकी बातचीत भी हुई। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि क्या वो जिस्मानी तौर पर ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, क्या पुलिस ने उन पर किसी किस्म का तशद्दुद तो नहीं किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन पर कोई भी तशद्दुद नहीं किया गया। 5 रोज का जिस्मानी रिमांड जिस पर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। कोयटा में सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से कुचलने के मुलजिम MPA बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकज़ई को आज अदालत में पेश किया जाना था। उन्हें बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया गया, लेकिन उस पेशी पर रिमांड नहीं हो सका, जिसके बाद अब्दुल मजीद अचकज़ई को दोबारा से अदालत मुंतकिल किया गया। दोबारा से उनकी पेशी हुई। मजीद अचकज़ई जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश हुए। इस पेशी के बाद उन्हें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो 5 रोज तक पुलिस के हवाले रहेंगे। जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इस मौके पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी भी की। पेशी की वीडियो बनाने पर भी बरहम हुए और इस मौके पर सहाफियों से कहा कि क्या पुलिस ने पहले से बुला रखा था, बेशरम कहीं के। आपको वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हिलाल अकबर, DG रेंजर्स सिंध और IGFC बलूचिस्तान को टेलीफोन किया है और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तबादला ख्याल किया है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर और DG रेंजर्स सिंध और IGFC बलूचिस्तान को टेलीफोन करके दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तबादला ख्याल किया है। चौधरी निसार ने कहा कि वजारत दाखिला की मुतल्लिका हुकूमतों को सिक्योरिटी अलर्ट और पेश की मालूमात फराहम करने के बावजूद भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाना बाइस तशवीश है। गुज़श्ता रोज की कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद ग्रुप सहूलतकारों की निशानदही करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। चौधरी निसार ने कहा कि पाक अफगान सरहद खोलने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाती है।
अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर आमदोरफ्त की कड़ी निगरानी की जाए। चौधरी निसार ने कहा कि वजारत दाखिला के मुतल्लिका हुकूमतों को सिक्योरिटी अलर्ट और पेश की मालूमात फराहम करने के बावजूद भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाना बाइस तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद, ग्रुपों, सहूलतकारों की निशानदेही करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, DG रेंजर्स सिंध और IGFC बलूचिस्तान को टेलीफोन किया है। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चमकरी में फ्लोर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से खुद को जैकेट बनाने का सामान और दीगर मवाद बरामद हुआ। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चिमकनी में फ्लोर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। फैक्ट्री से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, दस्ती बम, क्लैशनकोफ, बारूदी मवाद और 600 से ज़ायद डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। CPO पेशावर ताहिर खान के मुताबिक दहशतगर्द फ्लोर मिल में मोर्चा जन थे और वहां IEDs तैयार की जा रही थीं। यहाँ से मल्टीपल मोबाइल टेलीफोन्स मिले हैं जिसके अंदर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी हैं जो कि मुमकिना टारगेट्स की निशानदेही इंशाअल्लाह ताला हमें और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को करेंगी। इसके अलावा यहाँ से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी वाफिर मकदार में मिले हैं। इस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचा दिया गया। पारा चिनार में खुदकुश धमाकों के मजीद 12 जख्मी दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई है। गुज़श्ता रोज पारा चिनार एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार हो गया। हम दुश्मनों ने मासूम शहरियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाकों के जो मुलजिम हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कोयटा में गुज़श्ता रोज गुलिस्तान रोहट पर धमाका हुआ, इससे भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं पारा चिनार में खुदकुश धमाकों के मजीद 12 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई। कयामत से पहले कयामत का आ जाना, कोई पारा चिनार के बासियों से पूछे। सफ़े मातम बित जाना, कोई तूरी बाजार वालों से पूछे। प्यारों का एक ऐसे सफ़र पर चले जाना जहां से वापसी नहीं। ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता रोज पारा चिनार में। किसी को इफ्तार का सामान खरीदना था, कोई बहन के लिए ईदी की चीज़ें लेने आया था और किसी को सब्जी तरकारी लेने की जल्दी थी। कुछ ही देर में मंजर तब्दील हो गया। 2 धमाकों के बाद एक क़यामत थी जो लोगों पर गुजर गई। बिखरी चप्पलें, खून आलू चादरें और चारों तरफ बारूद की बू। ईदगाह मार्केट से मुत्तसिल तूरी बाजार में इफ्तार से कबल यक के बाद दीगरे 2 मुबैना खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए। धमाके में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली अफजल अफजाल का एक भतीजा शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। धमाकों के बाद एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चिनार में इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन अद्वियात और स्टाफ की कमी के बायस जख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शोहदा के घरों पर सफ़े मातम बिछी हुई है। लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। कोयटा में गुज़श्ता रोज गुलिस्तान रोड पर धमाके का एक और जख्मी जाँ बहक हो गया, जिसके बाद शोहदा की तादाद 14 हो गई। दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कोयटा खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया, जिसके बाद धमाके के जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। अब भी कोयटा धमाके के 4 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 17 जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। दूसरी जानिब धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके के बाद से 3 पुलिस एहलकार लापता हैं। दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। धमाके का मुकदमा SHO कैंट मोहम्मद असलम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तहकीकात में मदद के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की टीम भी कोयटा पहुंची, जिसने खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए DNA के नमूने हासिल कर लिए हैं। कोयटा में गुलिस्तान रोड पर खुदकुश हमलावर ने AIG के दफ्तर के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में 75 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था।
کراچی کے علاقے سائٹ میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی محکمہ انسداد دہشت گردی نے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ CTD حکام کے مطابق علاقے کی جیو فینسنگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز سائٹ کے علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ASI سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ گزشتہ شام سائٹ میں ہوٹل پر پولیس اہلکاروں کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان عین افطار کے وقت پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہیں اور پمفلٹ پھینک کر فرار ہو جاتے ہیں۔ شہید اہلکاروں میں ASI محمد یوسف، کانسٹیبل راجہ شبیر، خالد اور اسرار شامل ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ میں IG سندھ، DG رینجرز اور صوبائی وزیر منظور وسان سمیت ورثاء اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل IG کراچی نے بتایا کہ جائے وقوع سے 30 خول اور کلعدم تنظیم کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ شواہد سامنے آئے ہیں، 2 موٹر سائیکلیں تھے اور 4 حملہ آور تھے۔ 30 کے قریب ہمیں خول ملے جو سب کے سب 9mm کے ہیں۔ وہ فارنسک سے پتہ چلے گا کہ ایک ہی ویپن ہے یا 2 ویپن یا 3 ویپن ہے، اور سب کو جو گولیاں لگی وہ سر پہ لگی ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو پرانا دہشت گردی کا طالبان، داعش یا ان سے جو ریلیٹڈ انتہا پسند گروپ ہے وہی ملوث ہوں گے۔ واقعے کا مقدمہ CTD تھانے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے، جبکہ جائے وقوع سے ملنے والے خولوں کو فورنسک کے لیے لیب بھیج دیا گیا ہے۔ CTD نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے علاقے کی جیو فینسنگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی مزید CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ CTD حکام کے مطابق عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل IG CTD نے اجلاس طلب کیا ہے، جس میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ سیالکوٹ کے نالا لیک میں شہور کے مقام پر 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 6 سے 8 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق ہونے والے شراز اور افضل سگے بھائی علی اور مریم بہن بھائی ہیں۔ سیالکوٹ کے نالا لیک میں شہور کے مقام پر 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 6 سے 8 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق ہونے والے شراز اور افضل سگے بھائی علی اور مریم بہن بھائی ہیں۔ کراچی میں مجسٹریٹ کی عدالت نے فیروز آباد سے گرفتار دونوں بچوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے 5-5 ہزار روپے کے ذاتی مچلکوں پر تھانے ہی سے بچوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اجلان اور محسن پر چوری کی موٹر سائیکل رکھنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بچوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے اجلان اور محسن کو سنیپ چیکنگ کے بہانے روکا اور عیدی نہ ملنے پر تھانے لے گئے۔ بچوں کے چچا کا موقف ہے کہ موٹر سائیکل کافی عرصہ قبل چوری ہوئی اور مل بھی گئی تھی۔ دونوں لڑکوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ کراچی میں مجسٹریٹ کی عدالت نے فیروز آباد سے گرفتار دونوں بچوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر GIT میں پیش ہو گئے۔ اس موقع پر جوڈیشل اکیڈمی کے باہر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کیپٹن صفدر میڈیا سے بات کیے بغیر ہی جوڈیشل اکیڈمی میں داخل ہو گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے داماد اور رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر آج پیناما لیگ سے متعلق قائم کردہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس موقع پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود لیگی کارکنوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور میڈیا سے بات کیے بغیر ہی جوڈیشل اکیڈمی میں داخل ہو گئے۔ جوڈیشل اکیڈمی اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود ہے، جو وزیر اعظم اور پارٹی کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پینما کیس کی تحقیقات کے لیے GIT کی شکایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر قائم 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی SECP کے ریکارڈ میں تبدیلی کی تحقیقات کرے گی۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی DGFIA نے تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ونگ ہیڈ کوارٹر مقصود الحسن کریں گے۔ کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان، طاہر تنویر اور فاروق لطیف شامل ہوں گے۔ GIT نے SECP پر ریکارڈ میں تبدیلی کا الزام لگایا تھا۔ پینما کیس کی تحقیقات کے لیے GIT کی شکایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر قائم 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
दुनिया के कई मुल्कों में आज शवाल का चांद देखने के लिए इजलास होंगे, जिनमें ईद का चांद नजर आने या ना आने के बारे में ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात में ईद का चांद देखने के लिए इजलास आज शाम होंगे। अमरीका और कनाडा में इस्लामी कैलेंडर पर अमल करने वाली इस्लामी तंजीमें और मसाजिद इतवार को ईद मनाएंगी। अमरीका और कनाडा के मुसलमानों के तमाम मकातब फिक्र और इस्लामी तंजीमों ने 27 मई को रमजान का आगाज किया था। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। शव्वाल का चांद इतवार 25 जून को नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं, ये बताना है महकमा मौसमियात का। साइंस की रूह से ईद उल फितर 26 जून बरोज पीर को होने के इम्कानात हैं। शव्वाल के चांद की पैदाइश आज हफ्ते की सुबह 7:29 पर हो चुकी है। 25 जून को शाम चांद की उम्र 36 घंटे से जायद हो चुकी होगी। चांद की उम्र 35 घंटे से जायद हो तो नजर आने के इम्कानात वाज़े होते हैं, ये बताना है महकमा मौसमियात का। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा देर तक शवाल का चांद बलूचिस्तान के इलाके जीवानी में दिखाई देगा। चांद 25 जून की शाम उम्र 36 घंटे से जायद कर चुका होगा और इसकी उम्र अगर 35 घंटे से जायद हो जाए तो नजर आने के इम्कानात वाज़े हो जाते हैं। शवाल के चांद की पैदाइश आज हफ्ते की सुबह 7:29 पर हो चुकी है। गाड़ियां, स्कूटियां, सोना, टिकट और ढेरों बाइक्स। जियो खेलो पाकिस्तान में हिस्सा लेकर इनामात जीतने वालों की लंबी कतार लग गई। मेगा गेम शो के विनर्स की तफसीलात बता रही हैं नादिया फैसल इस रिपोर्ट में। कहीं कुरानदाजी से गाड़ी तो कहीं आइसक्रीम खाकर मोटरसाइकिल। जियो खेलो पाकिस्तान की 27वीं शब भी दिलचस्प गेम्स खेलकर आसानी से इनामात जीतने वालों की लाइन लगी रही। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत एंजॉय किया और मुझे पता नहीं था मेरी गाड़ी निकलेगी। ये अल्लाह का शुक्र है, आग एहसान है कि मेरी गाड़ी निकली। मुबारक आपको भी बहुत बहुत स्कूटी डालडा की। उन्होंने मुझे बुलाया और उसमें कहा आइसक्रीम खानी है, तो मैंने इतनी सारी खा ली कि उन्होंने मुझे बाइक दे दी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे उम्र का टिकट निकला है और माशाल्लाह से मैंने बाइक भी जीती है। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। शो बहुत अच्छा है, बहुत मजा है, एंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है। वसीम भाई की और शुएब भाई की होस्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगता नहीं है कि ये लोग पहले क्रिकेटर थे, मतलब ये क्या होस्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले एंकर रह चुके हैं। जियो खेलो पाकिस्तान। आइए आपको क्यों भाई की बाइक मुबारक। 1 और 11 में हिस्सा लेकर खेलने वाली फैमिली 22 तोले सोना या प्लॉट तो ना जीत पाई, मगर फिर भी डील में मिलने वाले एसी, बाइक, वॉशिंग मशीन, 2 तोले सोना और दीगर इनामात से खासी खुश नजर आई। डील सही है, डन। ओह डिसीजन, डील जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच। जो मिला अल्लाह ने दिया मेरे लिए बहुत है। अगर उसमें एक निकल आता तो मेरी डील भी जाती। मैंने कहा बस यही ले लो, डील ले लो। आ जाओ, चल। अबे गाड़ी, मोबाइल, बाइक, दुबई का टिकट, पता नहीं क्या क्या जीते हो। क्रिकेट के 2 सुपरस्टार्स का अपनी मुनफरिद मेजबानी से अवाम के दिल जीतने का सिलसिला जियो खेलो पाकिस्तान की इस नशरियात में भी अरूज पर रहा। 27वीं नशरियात में खिलाड़ियों को मिलने वाले बड़े इनामात में 2 गाड़ियां, 13 मोटर बाइक्स, उम्रे दुबई और तुर्की की 1-1 टिकट, 2 तोले सोना और 2 स्कूटियां भी शामिल हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।